सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ सत श्री अकाल। पिछले लैक्चर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कुछ रैंक बारे पढ़िया ਸੀਗਾ जी ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਫਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚ फाइंड एक्स फाइंड करना ਆਪਾਂ ने। किसी मैट्रिक्स का रैंक लैस दैन और इक्वल टू 2 दिता है अपन ते इस मैट्रिक्स विचों आप एक्स फाइंड करने वास्ते क्या उन्होंने तो देखो मैट्रिक्स है अपने को 4 माइनस एक्स 2 रूट 5 0 2 रूट 5 4 माइनस एक्स रूट 5 0 रूट 5 ਅਤੇ 4 ਮਾਈਨਸ x। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਮੰਨ ਲਈਏ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੈਂਕ ਆਫ a ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਕ ਆਫ a ਜੋ ਹੈ ਇਹ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 0 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਔਰ ਮਤਲਬ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਜੋ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਹੈ ਇਹ 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋ 3 ਨੇ ਜੇ ਰੈਂਕ ਇਹਦਾ 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਂਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ 3 ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਾਈਨਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਰਡਰ 2 ਵਾਲੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਾਈਨਰ ਜੇ ਸਾਰੇ 0 ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਰਡਰ 1 ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਕ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਨੌਨ 0 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਰਡਰ 3 ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਨੌਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਸਿੱਧਾ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਰਡਰ 3 ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਸਾਰੇ 0 ਆ ਗਏ ਫਿਰ 2 ਵਾਲੇ ਕੱਢਾਂਗੇ 2 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ 0 ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਰ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ 2 ਉਹ ਰੈਂਕ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 3/3 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਜੇ 3/3 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਰ ਨਿਕਲੇਗਾ 3 ਦਾ ਆਰਡਰ 3 ਵਾਲਾ ਆਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਅਦ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਰੈਂਕ 3 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਨੌਨ 0 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਂਕ 3 ਆਊਗਾ ਪਰ ਰੈਂਕ 3 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡਰ 3 ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਪੱਕਾ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੈਂਕ 3 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਅਰਫੋਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਹੋਊਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ। 0 ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ 0 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਂਕ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ 2 ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਰਮ ਆ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ 3 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੈਂਕ 3 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਰ ਪੱਕਾ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0 ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ पहला आ गया 4 - x
ये मल्टीप्लाई करता जी 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अगे माइनस 2√5 इन्होंने मल्टीप्लाई किया 2√5 इंटू 4 माइनस एक्स सिंपल एक्सपेंड किया जी अपने ये सारे विचों 4 माइनस एक्स बाहर कढ़ लो जो 4 माइनस एक्स बाहर आया जी ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 ये बनेगा 5 4 20 माइनस 20 जो इतों एक का वैल्यू एक्स की 4 आ गई इनू सॉल्व कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इतों एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 और माइनस 1 तो यदा बाकी +2 लैवल का क्वेश्चन बन गया सॉल्व कर लिया वो कंसैप्ट किवें आया वो इदा एक नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आप वो थोड़ा होर कंसैप्ट क्लीयर हो जाऊगा जी ये वाला वो नैक्सट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी स्टेटमेंट पार्ट में देख लो स्टेटमेंट फाइंड द रैंक ऑफ ईच मैट्रिक्स क्या है इसका सैकेंड पार्ट करना अपने कला 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मैट्रिक्स की बना अपन ਇਹਦਾ रैंक फाइंड करना ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ रैंक ਤਾਂ ਨਿਕਲੂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ 1 2 3 ਤਾਂ ABC ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ रैंक ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ तीन पार्ट ने जी सो देखो लैट कर लिया आप ए मैट्रिक्स मान लिया 1 1 1 सी बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैंक आप उवें कढ़ते होंगे पहला ये 3/3 का ऑर्डर 3 का माइनर कटांगे पहला मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कढ़ लो ये की है ऑर्डर 3 का माइनर ये कितना होगा 1 b प्लस सी हुण ये जे तुहानूं प्रॉपर्टियां ध्यान च ने कि डिटरमिनेंट किवें सॉल्व करना हुंदा फिर सौखा सॉल्व हो जाएगा मैं प्रॉपर्टी ला के ही सॉल्व कर रहा हूँ किवें इन्हूं ऑपरेट किया आप R2 ते R2 माइनस R1 ਅਤੇ R3 ਤੇ ऑपरेट किया R3 माइनस R1 ये ऑपरेशन वैसे आप आने चाहिए ने ते जो नैक्सट आप पहला लास्ट लेक्चर च किया सी रैंक के दो तरीके करने अपने एक तरीका बाय यूजिंग डिटरमिनेंट एक तरीका होगा बाय यूजिंग ऑपरेशन जे ऑपरेशन आप आते होणगे तो ऑपरेशन की लोड़ पेगी अपन सैकेंड मैथड दे विच जे नहीं आते तो देख लो ध्यान नाल किवें सिंपल ने R2 दे विचों R2 हुंदी है जी ये R1 हुंदी है ये R2 ये R3 पहली रो है दूजी रो तीजी रो ये पहली कॉलम C1 दूजी कॉलम तीजी कॉलम ये ऑपरेट किया आपाने ये आ गया डिटरमिनेंट 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इदां आ गया हुण R2 चो R1 घटाना कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट माइनस करने होंगे ए चो ए घटाया 0 आ जाएगा ए चो ए माइनस किया शॉर्टकट मार रहे हैं सी कट गया ए माइनस बी ए चो ए माइनस किया आप सी कट गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ध्यान दईए इस तो बाद R3 माइनस R1 किया 0 ये चो घटाया आप बी कट गया ए माइनस सी आ गया ए चो घटाया बी कट गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिटरमिनेंट दे विचों किसी एक रो दे विचों जां कॉलम चो कॉमन निकलदा होवे तां बाहर कढ सकदे हां डिटरमिनेंट दे विचों
किसी एक रो दे विचों कॉमन निकलदा होवे तां बाहर कढ सकदे हां। ये रो दे विचों ये फैक्टर बनावांगे आपां a माइनस बी a प्लस बी, ये तिन्नां दे विचों a माइनस बी बाहर कढ लवांगे, ये चों a माइनस सी कढ लवांगे बाहर। तां ये बन गया अपने कोल इक्वल्स टू a माइनस बी बाहर आ गया, ये चों b माइनस सी बाहर आ गया जी, a माइनस सी सॉरी। तो यह बन गया जी 1 b प्लस सी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 0 1 इत्थे a प्लस बी रह गया 0 1 इत्थे a प्लस सी रह गया। हुण इहनूं एक्सपैंड कर लो जी, इस कॉलम आप एक्सपैंड किया जी और दोनों 0 हो गए, इन्हूं मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाऊगा a माइनस बी a माइनस सी, इनू किता जी a प्लस सी माइनस a माइनस बी। सिमिट्री जी बनानी होंदी है अपने, सिमिट्री मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गल है, सिमिट्री बनानी होंदी है अपने। इत्थे a माइनस बी है, इदां हुंदा जी a तो बाद b आंदा, b तो बाद c आंदा हुंदा। जे a माइनस b आ तां b माइनस c बनाउणा, जो मैं लिख दूंगा पहला और a माइनस सी इत्थे c माइनस बी। पहला a माइनस बी है, a तो बाद b आऊगा, b तो बाद c आऊगा, फिर रिपीट कर लो c तो बाद फिर a आऊगा। इस सिमिट्री में रिपीट कर लीदा होंदा, जिवें a b c दोबारा a b c a b c, ये सिमिट्री कहने होंदे कि a तो बाद b आऊगा, b तो बाद c तो बाद a। बाकी समझ आ जाऊगा जी किवें। हुण a तो बाद b पाया तो कोशिश करो कि b तो बाद c आवे, इनू b माइनस सी लिख लिया, किता कि ये चो माइनस कॉमन कटिया, तो c तो बाद a आ, ये c माइनस a बनाओ जी, ये माइनस कॉमन काढ़ लो जी। बाहर क्यों नहीं पाया, एक माइनस ए विचों कढ़िया, एक माइनस ए विचों कढ़िया, प्लस हो गया। चलो ये अपने कोल डिटरमिनेंट आ गया जी पहला। ये क्यों कढ़िया आपां ने, बिकॉज जे आपां रैंक फाइंड करना होवे पहला सब तो ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ 3 ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਪੱਕਾ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨॉन 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 0 नॉन 0 देखना क्यों ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ नॉन 0 ਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ नहीं ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। जे नॉन 0 हो गया उस केस आप कहांगे ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 3 ਆ, रैंक 3 बन जाएगा। जे ਇਹ 0 हो गया फिर अगे माइनर कटांगे आप अगे, फिर प्रोसैस चलावांगे। फिर ये की हैगा आपां नूं A B C बारे नहीं पता हैगा, तो ये अगे केसिस बन गए। ये केसिस करके ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये केसिस करके ये करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो केस पहला लै रहे हैं आप, केस पहला A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, C नॉट इक्वल टू A। जे तिन्ने बराबर ना होए, इनू की लिखांगे आपां, नो टू ऑफ A B C आर इक्वल, दैट इज A B C विचों कोई दो इक्वल नहीं हैगे, सारे डिफरेंट ने, सारे डिफरेंट ने, या ऑल आर डिस्टिंक्ट कह सकते हैं आपां। दैट इज A B C all are distinct। ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा होगा, जे ये नॉन 0 आ, ये भी नॉन 0 आ, ये भी नॉन 0 क्यों कह रहे हैं, बिकॉज बराबर नहीं है। नॉन 0 नॉन 0 नॉन 0, देखो ना तो यह 0 आ 2, ना 1 0 आ, ना 4 0 आ, कोई 0 नहीं है ना। ये लग रहा अपना आइडिया, ये भी नॉन 0 आ, ये भी नॉन 0 आ, ये भी नॉन 0 आ, तो आंसर पक्का नॉन 0 आएगा। तो इस केस दे विच अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन 0 आ जाएगा, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना आएगा 3 है, बिकॉज इस माइनर दियां ऑर्डर कितना 3 ऑर्डर आएगा। जे डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया, जो माइनर नॉन 0 आ गया, उस केस आप कहांगे रैंक जो होगा ऑर्डर ऑफ माइनर होंगे, और ये माइनर का ऑर्डर कितना आएगा 3 है। तो पहला केस बन गया, जे तिन्ने नॉट इक्वल टू होण, आपस सारे डिस्ट्रिक्ट होण जी, उस केस दे विच रैंक जो है 3 होगा। पर बराबर भी तो हो सकते हैं, वो करन लगे आप।
एक केस पहला सीगा जी, अगे केस करन लगे आप। मैं लिख नहीं रहा है, माइनस ऑफ ऑर्डर 2 हूँ आ लै रहे माइनस ऑफ ऑर्डर 2। हजे केस सेकंड मैं बना नहीं रहा जी, क्यों नहीं बना रहा लग जाएगा पता। पहला माइनस करते हैं सारे ऑर्डर 2 वाले, किहड़े किहड़े बनने सारे फाइंड करने पैणगे आपां नूं जी। 1 B प्लस C 1 C प्लस A, पहला माइनस कितना आऊगा आंसर, नीचे आंसर पा लो A माइनस B, समझो ध्यान। दूजा माइनस, पहला ध्यान तो माइनस किहड़े किहड़े बनने, पहला उपर लवांगे आप आ 2 ले ले जी, हुण मैं आ 2 लै रहा उपरले लै रहा, ये काफ़ी माइनस बनने सारे कट रहे अपने माइनस। हुण आ 2 लए आप 1 B स्केयर C स्केयर, तो थोड़ा जा मेरे शॉर्टकट लाऊंगा जी, वो देख लियो ध्यान। ये वही गल है जिन्होंने ये क्वेश्चन समझ आ गया, मतलब कंसैप्ट पूरा क्लीयर है जी, ये तां ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सारे माइनस कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं वो देखांगे जी आप। ये कितना आ गया, C स्केयर कट गया, A स्केयर माइनस B स्केयर, ये मैं फैक्टर बना ले A माइनस B A प्लस B। होर माइनस केड़ा होगा, पहला 2 हो गया, आ हो गया, आ आखिरी 2 होंगे B प्लस C, B स्केयर प्लस C स्केयर, C प्लस A, C स्केयर प्लस C स्केयर। ये खोल लो, ये मल्टीप्लाई कर लेने सारा, B C स्केयर B A स्केयर C क्यूब C A स्केयर माइनस ये बन गया C B स्केयर माइनस C क्यूब माइनस A B स्केयर माइनस A C स्केयर। तो ध्यान ना सॉल्व करना सारा, ये कट गया आपस। हुण इन्हां चों कॉमन कढ लो, की कॉमन निकलदा दोनों चों। इन्हां दोनों चों कॉमन कढिया आपां ने, ये 2 चों कॉमन कढदे आपां, इहदे विचों BC कॉमन निकलेगा, ध्यान दो। जे BC कॉमन निकल गया तो अंदर की बच गया C माइनस B, ध्यान नाल फैक्टर बनाने ने जी। बाकी थोड़ी मर्जी हैगी है, ये भी आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ी मर्जी है। चलो ये चो कॉमन कट लिया, हुण इन्हां दोनों चो कॉमन कट रहा जी मैं, ये ये कॉमन कढ़िया आपने, इन्होंने दोनों चो कढ़ लो कॉमन चो, देखते हैं बाकी फिर की बनता। जैसे ऑपरेशन लगा लेने आप, सौखा रहूगा जी, ऑपरेशन लगा के सौखा आ जाऊगा जी। ये लाया अपने R2 तो R2 माइनस R1, ये बन जाएगा जी B प्लस C B स्केयर प्लस C स्केयर, इनू किता A माइनस B आ, इनू किता A स्केयर माइनस B स्केयर। इन्हां विचों आपां ने A माइनस B मैं कॉमन कट रहा, देखी जाओ जी A माइनस B कॉमन आ गया। ऑपरेशन लाने का फायदा यही होंदा कि फैक्टर सौखे बन जाते हैं, जो पहला औखे बन रहे थे। ये चो A माइनस B कढ़ लिया बाहर, इत्थे लिख देना, चलो इथों A माइनस B कढ़ लिया बाहर, ये की बनेगा B प्लस C B स्केयर प्लस C स्केयर 1 A प्लस B आ गया। हुण इनू खोल लो, ये बन गया AB प्लस B स्केयर प्लस AC प्लस BC माइनस B स्केयर माइनस C स्केयर, ये कट गया। ये मैनू चाहिए जी, मैं तो रब नहीं कर रहा। ये बन गया अपने कोल A माइनस B इक्वल्स टू, ये आ गया AB AC BC माइनस C स्केयर।
चलो फिर लिख लवांगे बाद चों आपां। ये हजे 3 माइनर बने, 6 माइनर होर आउणगे। किवें? इत्थे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर सी, जे गल समझ आ रही होवे। पहला आ दो लईआं आपां रो, जे आ दो लईए रो फिर बिचली छड्ड दी, ये 6 बनणगे। पहला आह ते आह ते सारे कटने आपां ने। फिर जे आ दो लवांगे 3 आ बनणगे, तो ओवर आ 9 माइनर बनणगे। 9 2 बाय 2 दे। तो देखो मैं बना रहा एंड हुण ए लवांगे आह ते आह, मैं रब कर रहा। ये केस भी आप बाद देख लेंगे जी। तो देखो वो हैगा सी 1, दूजा हैगा सीगा जी पहली ते थर्ड रो ले रहे हैं 1 बी प्लस सी 1 ए प्लस बी। इहदा आऊगा अपने को ए माइनस सी। दूजा आ गया 1 बी स्केयर प्लस सी स्केयर 1 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये चैक कर लियो ठीक कट रहा है माइनर। इनू किता बी बी पड़ जाएगा ए माइनस सी ए प्लस सी। हुण ए किता जी आपाने अगला आ जाएगा बी प्लस सी बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अगे आ गया ए प्लस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इन्हें एक्सपेंड कर लेना आप भी ऑपरेशन लगा के। ये चों ए माइनस सी बाहर आ जाएगा, एक तो ए माइनस सी ये चों बाहर आ गया। अंदर मैं लिख रहा हूँ चेक करियो ए सी ए बी बी सी माइनस बी सी। ये बना के देख लियो जी ये बनता कि नहीं बनता। तो चेक करो अगे एंड हुण आपां लैनी हैगी है जी पहली ते दूजी कॉलम दूजी तीजी सॉरी दूजी तीजी आऊगी जी 1 सी प्लस ए प्लस बी। एक्सपेंड कर लियो जी। ये चीज़ जिहड़ी हैगी अपने को ये आ गया जी पी माइनस सी 1 सी स्केयर प्लस ए स्केयर 1 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये आ गया जी बी माइनस सी बी प्लस सी। सॉल्व कर लियो। अगे आ गया जी अपने कोल सी प्लस ए सी स्केयर प्लस ए स्केयर। अगे ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इन्हें एक्सपेंड करें आप ये भी बन जाएगा जी बी माइनस सी कॉमन ए सी ए बी सी माइनस सी जो भी आएगा ठीक है। हुण ध्यान दे विच की हैगा अपने को जिहड़ी गल समझाउणी है। ये ऑर्डर 2 वाले माइनर कढ़ लए आपां। ये मैं रब कर रहा जगह बनाने वास्ते। नाउ के सेकंड लिया अपन if 2 of A, B, C are equal and distinct from third। ये समझो ध्यान की है
जे इन्हां विचों कोई दो इक्वल ने तीजा अलग आ, मतलब जां ए बी इक्वल होण सी अलग होवे, जां बी सी इक्वल होण ए अलग होवे, जां सी ए इक्वल होण बी अलग होवे, कोई दो इक्वल होण। हुण ये दो इक्वल की गल कित्थों आ गई? आपां जो वड्डा माइनर कढिया सीगा वो सीगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। पहला केस की लिया सी कि तिन्ने आपस च ना ए इक्वल टू बी आ, ना ए इक्वल टू सी आ, ना बी इक्वल टू, तिन्ने इक्वल नहीं है। जे तिन्ने इक्वल नहीं होणगे इस केस आंसर पक्का नॉन जीरो होगा, फिर अगे सॉल्व नहीं करांगे, अपना रैंक आ जाऊगा 3 रैंक आ जाऊगा। जे बाय चांस इन्हां विचों इक्वल आ गए, फिर उही केस बना रहे हैं आपां, जे इन्हां विचों सिर्फ दो इक्वल आ गए, जे आह इक्वल आ गए तां भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाऊगा। ध्यान दो, कोई दो इक्वल किया जी, जे आह दो इक्वल आ गए आह वैल्यू जीरो बन जानी है तां भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाना हैगा, जे आह इक्वल हो गए तां भी ये वैल्यू जीरो बन जानी है तां भी डिटरमिनेंट कितना हो जाऊगा? जीरो हो जाऊगा। मतलब जे इन्हां विचों कोई दो भी इक्वल हो गए उस केस अपने कोल, इस केस दे विच दैन डिटरमिनेंट ऑफ ए पक्का की होगा? जीरो हो जाएगा। फिर अपन अगे जाना पैना। हुण अगे जाण वास्ते ही माइनर कड्ढे ने आपां। ध्यान दो, जे कोई दो इक्वल हो गए, ए ते बी इक्वल हो गए, कोई दो इक्वल हो गए, मान लो ए बी इक्वल हो गए, आ भी जीरो आ जाएगा, आ भी जीरो आ जाएगा, जो आ कड्ढिया आ भी जीरो, तिन्ने माइनस जीरो आएंगे उपर वाले, पर आ तो नॉन जीरो आऊगा। नॉन जीरो क्यों? बिकॉज ए ते सी बराबर नहीं है। फिर अगे नहीं जावांगे आपां, जे अगे नहीं जावांगे तो क्लीयर हो गया कि इस केस रैंक फिर कितना आऊगा? पक्का 2 आऊगा, क्योंकि नॉन जीरो का ऑर्डर कितना 2 है। जे बाय चांस आ दो इक्वल हो गए, जे बाय चांस बी ते सी इक्वल हो गए, फिर इत्थे काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए ते बी जिहड़े बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये की अपने को नॉन जीरो आएगा। जे नॉन जीरो आएगा तो पक्का जो माइनर होगा इस केस 2/2 वाला जीरो हो गया, ऑर्डर 2 वाला माइनस जीरो हो गया, तो रैंक 2 आ जाएगा। जे आ केस हो गया सी ते ए इक्वल होण, जे सी ते ए इक्वल हो गए, फिर ए ते बी तो इक्वल है नहीं, तो भी इस केस आ वाला माइनर की होगा? पक्का नॉन जीरो होगा। तो ओवरऑल गल देख ली, सारे माइनर देख के आपां ने, जे इन्हां विचों कोई दो इक्वल होण, तीजा इक्वल ना हो, तीजा डिस्टिंक्ट हो गए, तो उस केस डिटरमिनेंट ऑफ ए तो पक्का जीरो आएगा, बट वन ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल इज नॉन जीरो। एक माइनर जिहड़ा है पक्का ऑर्डर 2 वाला वो नॉन जीरो हो, जे नॉन जीरो होएगा तो इस केस पक्का, ये तो बाद इधर लिख रहा मैं, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पहला केस की सीगा, जे तिन्ने डिस्टिंक्ट होणगे रैंक 3 आऊगा, जे कोई दो इक्वल हो गए तीजा अलग होया फिर रैंक पक्का 2 आएगा। जे बाय चांस केस तीजा, मैं रब कर रहा, केस थर्ड देखियो ध्यान नाल, इफ जे तिन्ने इक्वल हो गए फिर इस केस डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो आएगा, पिछे पढ़िया आपने, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2, ये गल इंपॉर्टेंट है, ताही आप सारे कड्डे ने, ये भी सारे जीरो होंगे। क्यों? जे तिन्ने बराबर हो गए, आ भी जीरो, आ भी जीरो, आ भी जीरो, आ भी जीरो हो गया, आ भी जीरो हो गया, आ भी जीरो हो गया, आ भी जीरो आ गया, आ भी सारे जीरो हो जाए, ये ताही सारे कट के दिखाए ने आपने। इस केस पे की करांगे, जे तिन्ने इक्वल हो गए, आ भी जीरो हो गया, होर अगे गए, आ भी जीरो हो गया, फिर अपन होर अगे जाना पैना। हुण की करांगे आप, इस तो बाद माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1 कटांगे, वो काम सौखा है, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1 इस तो बाद करना जी। माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1 करांगे, पहली काम रुक जाएगा, 1 का माइनर 1 ही आऊगा, पहला एलिमेंट 1 ही है, पक्का नॉन जीरो, इत्थे काम खड़ जाएगा, सारे लोड़ नहीं कटन दी। जे तिन्ने इक्वल हो गए तो माइनर ऑफ ऑर्डर 1 जो है ये पक्का नॉन जीरो आ रहा है, तो इस केस दे विच ए तो बाद पाना जी है, इस केस दे विच इस तो बाद देयरफॉर रैंक ऑफ ए जो है वो पक्का 1 होगा। तो ओवरऑल ये सारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है जी। हम देखो ये क्वेश्चन कंसैप्ट काफ़ी आ रहे हैं जी, ये तां ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੇ ABC ਤਿੰਨੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3 ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤੀਜਾ ਅਲੱਗ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2 ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਆਪਸ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1 ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ